Good afternoon, everyone. I hope you all are doing well today. My name is Prithvi, and I am currently in my third year of the BTech program. In this session, we will be exploring what cloud computing is, why it matters, and how it is reshaping industries across the globe. क्योंकि हमारा पहला सेशन है, थोड़ी चीजें बता दूं। आने वाले थोड़े सेशंस जो हैं वो थ्योरी बेस्ड होंगे, पर जैसे जैसे टॉपिक्स लाइक गिटहब एंड मशीन लर्निंग आएंगे, we will be holding practical sessions where we will be training and deploying our models on Microsoft Azure services. इसके अलावा we will be having a quiz at the end of the session और जो टॉप रिस्पोंडेंट होगा he will be rewarded. इसके अलावा मीट खत्म होने से पहले एक गूगल लिंक होगा, उसमें डिटेल्स भर देना तभी सर्टिफिकेट मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट के. Now let's begin our today's topic, that is fundamentals of cloud computing. So, hello everyone. First of all, thank you so much for joining in. As Prithvi said, I am Aman Singh and I am an Alpha Microsoft Learn Student Ambassador. And I welcome you all to this event. I encourage you to ask questions, engage in discussions, and make the most of this learning opportunity. So, we should start this with no further ado. But before that, let's take a look at what MLSA is. So, MLSA stands for Microsoft Learn Student Ambassadors. It's a program offered by Microsoft. It is designed to equip you with valuable skills, provide meaningful experiences, and offer access to strong support network. Now let's take a look at a video that explains MLSA in more detail. The Student Ambassador community is a global community of like-minded students that share a passion for technology and for having an impact in the world. It's an amazing thing for people that both like social gatherings and in the same time they like tech communities. It's Microsoft helping folks around our campus. I wanted to improve my skills and I wanted to get connected with people that can help me do that. Best benefit is the access to MS Learn and LinkedIn Learning as well. You get an Azure subscription for tinkering around when you join the community and have completed your first milestone. You also get to be mentored by Microsoft employees. It's really a very wholesome experience where we're all just trying to help each other grow. I saw that people were having a lot of fun, but in the same time they were learning a lot of stuff. Everything that we have in the community is very inclusive and it welcomes everyone as they are. This is a great place to learn new skills, to connect with people, to create community, to help others. Students accomplish so much in this community. Not only do they build their own skills and their brand, but they create content. They work on hackathons, they get mentorship, and they put that all on their resumes. And they get full-time jobs when they graduate. It's really amazing. Anything good that's happening in my career probably started with this program. Be sure to apply for it. You would definitely enjoy being a Microsoft Learn Student Ambassador. So this was the video. Now I hope you guys are familiar with MLSA and welcome to MLSA. Now let's start our session without any further delay. Yes, this will be our first session और इसका जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. एज यू कैन सी हमारा टाइटल ही है माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर फंडामेंटल्स डिस्क्राइबिंग क्लाउड कॉन्सेप्ट्स. ओके, so here's our code of conduct. Let's move to next slide. Okay, so this is our learning objectives. हम देख रहे हैं कि क्या क्या हम इस सेशन में सीखने वाले हैं. द फर्स्ट इज डिफाइनिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रिसोर्सेज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराता है. देन विल बी लुकिंग एट द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल. हम ये देख रहे होंगे कि एक क्लाइंट और एक सर्वर और एक क्लाइंट और एक क्लाउड सर्वर जो है क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर, उनके बीच में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है. देन विल बी लुकिंग एट क्लाउड मॉडल्स. इसमें हम देख रहे होंगे कि जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स किस किस टाइप से डिप्लॉय होते हैं एंड हर एक ईच डिप्लॉयमेंट का क्या यूज केस है. देन हम देख रहे होंगे कंजम्पशन बेस्ड मॉडल. इसमें हम देख रहे होंगे कि कैसे जो प्राइस है, प्राइस डिटरमाइन होता है एक अलग अलग सर्विसेज का किसी भी क्लाउड सर्विस मॉडल पे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो वेल बिफोर स्टार्टिंग कोई डाउट इस सेशन से रिलेटेड अगर है तो यू कैन ड्रॉप इन द चैट्स. ओके ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट सेशन क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है,
सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, जो हमारे पास कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है, अगर हम उसको एक सर्वर पर होस्ट कर देते हैं और इंटरनेट की मदद से एक्सेस करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली दो ऐसी कॉमन सर्विसेज है जो हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देता है। द फर्स्ट इज कंप्यूटिंग पावर एंड द सेकेंड इज क्लाउड स्टोरेज। ये दो ऐसी सर्विसेज है जो हर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। It includes common IT infrastructure such as virtual machines, storage, databases and networking. Well, ये कुछ और भी सर्विसेज हैं जो हम देख रहे होंगे इसी सेशन के लास्ट में, जब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर का। उसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस एंड नेटवर्किंग काम करती है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML एंड IoT, ये चीज़ें भी क्लाउड सर्विस का यूज़ करके डिप्लॉय कर रही हैं। और हम जो फर्दर सेशंस आएंगे हमारे, उसमें हम चीज़ें डिप्लॉय भी कर रहे होंगे। हम पावर प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे होंगे, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट एजोर का सर्विस है, और उसका यूज़ करके हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे AI रिलेटेड। It doesn't have to be constrained by a physical infrastructure the same way that a traditional data center is. Well, इस चीज़ को भी हम इसी सेशन में लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे कि जहाँ हम एक काफ़ी पावरफुल वर्चुअल मशीन भी बना रहे होंगे, जो और जिसके स्पेक्स मेरे लैपटॉप से भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, और ये वो बताएगा हमें कि कैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरा लैपटॉप का स्पेक्स है, वो ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि मेरे क्लाउड पे क्या चीज़ रन हो रही है। So to put it another way, the cloud computing is a way to rent compute power and storage from someone else data center. Yes, हम क्लाउड कंप्यूटिंग को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम किसी और के सिस्टम से, किसी और के कंप्यूटर से कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज, ये सर्विसेज हम उससे उधार लेते हैं, एंड जब हमारा काम हो जाता है देन हम ये चीज़ उसको वापस कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम एक और चीज़ की बात कर रहे होंगे कि ये प्राइसिंग मॉडल कैसे काम करता है इसका। So let's move to the next slide. ओके, तो here is a video, intro video, जो आप देख सकते हो अभी। What is cloud computing? Just like when you shop for your own computer, cloud computing lets you choose the power and features you need to run your software. The difference is, with cloud computing, the PC is in a cloud provider's data center instead of physically with you. This lets you pay for only the services you use. Plus, someone else gets to manage the upkeep of the computer. Each cloud provider will have their own selection of services to choose from, but the basic services provided by all cloud providers are compute power and storage. Compute power is how much processing your computer can do. For example, when buying a home computer, you may choose a computer with 8 gigabytes of RAM and the latest processor to run the software you need today. But as the load on the computer grows, you find that it slows down. With cloud computing, you can add and remove compute power as you need it. This saves on costs, since you only pay for the resources you use. Storage is the volume of data you can store on your computer. A traditional computer has limited hard drive space. Over time, you may have to run out and buy another hard drive to store more data. With cloud computing, you can request more storage as you need it. Cloud providers manage the upkeep of the computer, so you don't have to. They will make sure that there are backups, that the operating system is up to date, as well as making sure that everything is up and running 24 hours a day. So as your business grows and your computing needs change, you can quickly bring on new computing resources in a cost-effective way. तो यस, ये था क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स, नॉट द बेसिक्स बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो आई होप कि अब सब फैमिलियर हो गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यस, हमारा सेकंड टॉपिक है डिस्क्राइबिंग द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस स्लाइड में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा क्लाइंट होता है और एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। एंड हम ये भी देखेंगे कि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अलग अलग, कि डेटाबेस कौन मैनेज करेगा एंड मेंटेनेंस क्या है, कौन मैनेज करेगा, ये सब चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड एक क्लाइंट में। ठीक है, बट उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो एक फिजिकल स्पेस एक्वायर करती हैं एंड उसी के अंदर अपने सर्वर्स बनाती है एंड उस पर अपना डेटा होस्ट करती है। ठीक है, वेल इस चीज़ में एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसमें अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है एंड जो कंपनी है
वही रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज़ के लिए, फॉर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, फिजिकल स्पेस, सर्वर, अपडेट्स, पैचेस, वर्जन कंट्रोल्स, इन हर चीज़ के लिए जो कंपनी है वही रिस्पॉन्सिबल होगी। बट इसमें एक जो सबसे की फीचर है, एक जो गुड पॉइंट है, वो ये है कि जो कंपनी है उसके पास सारा डेटा रहेगा, उसका खुद का डेटा रहेगा, तो उसके पास जितना भी डेटा वो स्टोर कर रही है उस पर कमांड भी उसी का है। ठीक है, वो अपना डेटा किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ शेयर नहीं कर रही, तो इसमें एक सिक्योरिटी फीचर काफ़ी अच्छा आ जाता है। देन लेट्स हैव अ लुक एट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में क्या होता है? हियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गेट शेयर्ड बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो क्लाउड प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर के बीच पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होती है, बट किस बेसिस पे होती है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाउड प्रोवाइडर रखेगा, कौन कौन सी कंज्यूमर रखेगा, ये हम आगे अगले नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फिजिकल सिक्योरिटी, पावर कूलिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। ये वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो एक क्लाउड प्रोवाइडर हमेशा देगा। एट द सेम टाइम द कंज्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द क्लाउड। वेल ऑब्वियसली अगर आपने एक वॉल्यूम ऑफ डेटा, एक वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज कहीं पे क्लाउड पे रखा है, तो उसके अंदर जो डेटा प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो कंज्यूमर जो कस्टमर है उसके ऊपर होता है। द कंज्यूमर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेस सिक्योरिटी, मीनिंग यू ओनली गिव एक्सेस टू दोज हु नीड इट। वेल यस, इसके अलावा जो कंज्यूमर है वो एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है एक्सेस प्रोफाइल एंड डिवाइसेस। जो कंज्यूमर है वो ये डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सा बंदा, कौन सा क्लाइंट जो सर्वर है वो एक्सेस कर सकता है और किस डिवाइस से कर सकता है। So let's move to the next slide. Some responsibilities depends on the situation. Okay. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। इसको एज ए एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं हम, कॉज लेट सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, ओके, और उस डेटा को मैंने एक क्लाउड पर सीक्वल डेटाबेस पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने सीक्वल डेटाबेस को क्लाउड पे स्टोर करा है, देन जो हमारे पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस क्लाउड डेटाबेस को, उस सीक्वल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, उसका रनिंग करने के लिए। ठीक है, बट ऑन द सेम नोट, अगर मैं एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, ठीक है, और उस वर्चुअल मशीन पे एक सीक्वल डेटाबेस इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, सीक्वल डेटाबेस इंस्टॉल करता हूँ, तो उस चीज़ में मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा अपडेट, पैचेस और बाकी सब चीज़ों के लिए। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे वर्चुअल मशीन एक आइसोलेटेड मशीन ही होती है जो हम अपने पीसी पे बना सकते हैं। ठीक है, और उसके स्पेसिफिकेशंस, ओएस, वर्जन कंट्रोल, ये सब हम खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये चीज़ तुम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो वर्चुअल मशीन बनाने का। लाइक पाइथन में भी बन जाती है आजकल तो, और VMware, वर्चुअल बॉक्स, इन सब पे भी बन जाती है। ठीक है, तो फिर आता है हमारा सर्विस टाइप। तो सर्विस टाइप्स के हम अंदर देख रहे होंगे कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल तो हमने देख लिया कि कुछ सर्विसेज होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो शेयर कर रहे होते हैं हम, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और एक कस्टमर के बीच में। बट हम उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि कौन सी सर्विस किसके पास रहेगी, कौन सी किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। द फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको AS बोलते हैं, IaaS। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमारे पास कंज्यूमर के पास होती है। ठीक है, वो क्लाउड तो यूज कर रहा है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा है, बट जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो कंज्यूमर के पास होगी। हम इस चीज़ को भी डिटेल में भी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे कि वो स्पेसिफिकली कौन सी सर्विसेज, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो कंज्यूमर के पास होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा इसमें, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, जो बेसिक नीड्स है, लाइक फिजिकल सिक्योरिटी, पावर एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, देन कम्स द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है, एंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करती है, और कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती है जो हम खुद से दे सकते हैं कि वो क्लाउड क्लाउड डिटरमाइन करेगा या फिर हम डिटरमाइन करेंगे। देन कम्स द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। सो PaaS क्या है, ये इट इज समवॉट इन बिटवीन IaaS एंड SaaS। ठीक है, इसमें कुछ सर्विसेज हमारे पास कंज्यूमर के पास भी होती है, एंड कुछ सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइडर के पास भी होती है। ठीक है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों सर्विसेज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
तो यहाँ पे एक चार्ट है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इंफॉर्मेशन एंड डेटा डिवाइसेस, अकाउंट्स एंड आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी एंड डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस, नेटवर्क कंट्रोल्स, ओएस, फिजिकल होस्ट, फिजिकल नेटवर्क, फिजिकल डेटा सेंटर। ठीक है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हमारे पास डिप्लॉयमेंट टाइप्स कितने हैं यहाँ पे। एक है SaaS, PaaS, ES, और यहाँ पे एक एडिशनल है, यहाँ पे ऑन प्रेम लिखा दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन प्रेम का मतलब है ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर, जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स था, जिसपे एक कंपनी खुद का एक फिजिकल स्पेस लेती है एंड सब कुछ खुद से करती है। ठीक है, ऑल्सो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क ब्लू मार्क डिनोट कर रहा है कस्टमर को एंड लाइट ब्लू मार्क डिनोट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट को। इस केस पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, इस केस पे माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड डेटा, डिवाइसेस, अकाउंट्स एंड आइडेंटिटीज, ये तीन चीज़ों के लिए हमेशा जो है कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल भी है। यहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक शेयर्ड रिसोर्सेज भी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन यूज करेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सर्विसेज जो है वो दोनों साइड से मैनेज हो रही होती हैं। ठीक है, बट इस टेबल से हम एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं, वो चीज क्या है कि अगर हम देखें टॉप से जो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, डिवाइसेस एंड अकाउंट्स एंड आइडेंटिटीज, ये तीनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हर बार कस्टमर के अंदर ही होगी। ठीक है, इस चीज के लिए कस्टमर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो SaaS हो, PaaS हो या ES हो। ओके, और सिमिलरली अगर हम बॉटम 3 को देखें, फिजिकल होस्ट, फिजिकल नेटवर्क एंड फिजिकल डेटा सेंटर, तो इन तीनों के लिए भी हमेशा जो हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बट ऑन प्रेम में नहीं होगा, बिकॉज ऑन प्रेम में ये सब कुछ के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एट लास्ट जो ये बीच की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आइडेंटिटी एंड डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस, नेटवर्क कंट्रोल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीज़ें डिटरमाइन होंगी कि हमने किस टाइप का डिप्लॉयमेंट यूज़ किया है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, की पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ टेक अवेज है, की पॉइंट्स हैं। तो हमने अभी पिछले स्लाइड में क्या देखा, हमने देखा यू विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, यू विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड। जो भी हम डेटा स्टोर करने वाले हैं क्लाउड्स में, उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके अलावा किस डिवाइस के, किस टाइप के डिवाइस को एक्सेस देना है, चाहे वो कंप्यूटर हो, सेलफोन्स हो या कोई लिनक्स बेस्ड डिवाइस हो, इस चीज़ के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे एज अ कंज्यूमर। एंड थर्ड, एक्सेस प्रोफाइल्स बनाने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए, कि कौन से अकाउंट्स, कौन से एक्सेस प्रोफाइल्स उस पर्टिकुलर डेटा बेस को, पर्टिकुलर डेटा सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्लाउड प्रोवाइडर की, वो मेनली 3 चीज़ों के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे किसी भी टाइप का डिप्लॉयमेंट हो। फर्स्ट इज फिजिकल डेटा सेंटर, सेकेंड इज फिजिकल नेटवर्क एंड थर्ड इज फिजिकल होस्ट। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ों के लिए और वो होता है रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस जो हो गया, वो भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर ही देखेगा। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर भी देखेगा। और जो फिजिकल स्पेस है वो भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर ही देखेगा। ठीक है, इन सब के अलावा योर सर्विस मॉडल विल डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थिंग्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कंट्रोल्स, एप्लीकेशन, आइडेंटिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये था हमारा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को, कोई एनी क्वेश्चंस, लाइक यू कैन ड्रॉप इन द चैट्स। ओके, अगर किस टाइप का डाउट है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन क्लाउड मॉडल। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक क्लाइंट था, एक यूजर एंड था, और एक क्या था, एक क्लाउड प्रोवाइडर था। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में हमने एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल देखा अभी। बट अब हम सिर्फ क्लाउड मॉडल जो है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, वो वाला साइड पढ़ेंगे कि उसको हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, उसको डिप्लॉय करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, एंड क्लाउड मॉडल्स में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि कितने तरीके होते हैं क्लाउड मॉडल्स को डिप्लॉय करने के। तो मेनली 3 तरीके होते हैं क्लाउड मॉडल्स को डिप्लॉय करने के, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। इसके अलावा भी आजकल काफ़ी सारे क्लाउड मॉडल्स आ रहे हैं जो कि एज़ोर बेसिस पे होते हैं। ठीक है,
बट मेनली ये 3 ही होते हैं. सो विल बी लुकिंग इनटू ओनली दीज 3. फर्स्ट इज आवर प्राइवेट क्लाउड. तो प्राइवेट क्लाउड का एक काफी अच्छा एग्जांपल से बताता हूँ मैं. सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी ट्रेडिशनली अपना डेटा स्टोर कर रही थी कहीं पे, बट अब क्या करना है, उस कंपनी ने अपना खुद का एक इन हाउस क्लाउड स्टोरेज डेवलप कर लिया. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डेवलप कर लिया, और ये चीज सिर्फ वो कंपनी एक्सेस कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती. तो इस चीज को हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड. ठीक है, कि जो कंपनी है, कंपनी ने अपना खुद का क्लाउड सर्वर बना लिया एंड उसको खुद ही एक्सेस कर रही है चीजों को मैनेज करने के लिए. ठीक, इट्स अ क्लाउड डिलीवरिंग IT सर्विसेज ओवर द इंटरनेट दैट्स यूज्ड बाय अ सिंगल एंटिटी. ओके, प्राइवेट क्लाउड का एक सबसे की फीचर जो है वो ये है कि इट प्रोवाइड्स मच ग्रेटर कंट्रोल फॉर द कंपनी एंड इट्स IT डिपार्टमेंट. इसमें हर चीज़ के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है ऑफकोर्स, एंड इसमें अपफ्रंट कॉस्ट जो होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है थोड़ी पब्लिक क्लाउड के कंपैरेटिव में. ठीक है, और इट कम्स विद अ ग्रेटर कॉस्ट एंड फ्यूअर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट. यस, इस पर थोड़े से बेनिफिट्स कम होते हैं. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स कैन बी HP डेटा सेंटर. बट अगर मैं HP के अलावा भी बात करूँ तो हमारे पास IBM है. IBM खुद के डेटा सेंटर्स यूज करता है. Oracle है, Oracle भी खुद के डेटा सेंटर्स यूज करता है. इन सब के अलावा नोकिया, वो भी खुद के डेटा सेंटर्स यूज करता है, प्राइवेट क्लाउड यूज करता है वो. देन कम्स द पब्लिक क्लाउड. तो पब्लिक क्लाउड भी काफी हद तक प्राइवेट क्लाउड जैसा ही है, लाइक सर्विसेज सेम प्रोवाइड करते हैं, बट पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड में एक जो सबसे की डिफरेंस है वो ये है कि पब्लिक क्लाउड में जनरल पब्लिक अवेलेबिलिटी होती है. ठीक है, लाइक कोई भी बंदा आता है, कोई भी बंदा पब्लिक क्लाउड को एक्सेस कर सकता है. और इसका सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो वेब होस्टिंग सर्विसेज होती हैं, लाइक विक्स हो गया, और भी कुछ वेब होस्टिंग सर्विसेज होती है, वो जो होती हैं वो पब्लिक क्लाउड यूज करती हैं. ठीक है, पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि जो कंपनी है, कंपनी एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज करेगी, एक थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर यूज करेगी. और थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर. ठीक है, ये थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स में आते हैं, और इनके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं. बट जो अभी वर्ल्ड के लीडिंग 3 कंपनीज है उनमें AWS, गूगल क्लाउड एंड माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है. So anyone that wants to purchase cloud services can access and use resources. General public availability is the key difference between public and private clouds. ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है. एक पब्लिक क्लाउड कौन यूज करता है, यू मे हैव हर्ड द नेम विक्स. ठीक है, wix.com. तो ये वेबसाइट बनाने के काम आती है. तो ये जो कंपनी है ये पब्लिक क्लाउड का यूज करती है, AWS यूज करती है मेनली. और यू मे हैव हर्ड विप्रो गूगल क्लाउड यूज करती है फॉर द क्लाउड सर्विसेज. ओके, फिर आता है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, जो प्राइवेट क्लाउड है एंड पब्लिक क्लाउड है, ये दोनों को यूज करती है, और वो भी एक इंटरकनेक्टेड वे में यूज करती है. ठीक है, तो इसका यूज केसेस वैसे काफी कम है, बट हाइब्रिड क्लाउड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है वो अभी मोनाश यूनिवर्सिटी का ही है मेरे पास भी. तो मोनाश यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इनके पास पहले अपना एक ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर था जिसमें ट्रेडिशनली डेटा स्टोर करते थे. बाद में इन्होंने जाके क्या किया, इन्होंने अपना खुद का एक इन हाउस प्राइवेट क्लाउड डेवलप करा, जिसका नाम इन्होंने दिया था स्टील स्टोर क्लाउड. आज के वक्त में इसका नाम चेंज हो गया, आई थिंक स्टील स्टोर क्लाउड से नाम चेंज हो गया है. और लेटर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डेटा इन्होंने स्टील स्टोर क्लाउड पे अपलोड किया था, वो सेम डेटा इन्होंने रेप्लिकेट किया AWS पे, Amazon वेब सर्विसेज पे. वेल, हाइब्रिड क्लाउड का यूज केसेस कम है, बट काफी कंपनीज हाइब्रिड क्लाउड यूज क्यों करती है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पे. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहा है कोई एक, ठीक है, एंड लेट सपोज मेंटेनेंस के अंडर है वो थोड़ी देर के लिए, तो वो दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का यूज कर सकते हैं होस्टिंग के लिए. ठीक है, और एल्स लोग बैकअप के लिए यूज करते हैं मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. डिफाइंड क्लाउड मॉडल्स. तो ये वही चीज़ है, बट यहाँ पे इस टेबल में हम देखने वाले हैं कि किस टाइप के डिप्लॉयमेंट का क्या बेनिफिट है एंड क्या ड्रॉबैक है. लेट्स सी अबाउट द पब्लिक क्लाउड पहले. तो पब्लिक क्लाउड में क्या है, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू स्केल अप. यस, हम ये चीज़ अभी देख भी रहे होंगे इसी इसी सेशन के लास्ट में, कि कैसे हम ये प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, कि हम अलग अलग वर्चुअल मशीन देख रहे होंगे कि और उसके प्राइसेस देख रहे होंगे कि कैसे हम 1 गीगाबाइट ऑफ रैम बनाएंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगा. ओके, और
एप्लीकेशंस कैन बी क्विकली प्रोविजनड एंड डीप्रोविजनड। यस, हम इस पे ऑन द गो जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 5 रिसोर्सेज हैं और मेरे को उसमें से सिर्फ 2 रिसोर्सेज की जरूरत है आज के वक्त में, तो मैं सिर्फ वो 2 रिसोर्सेज ही यूज करूंगा, एंड बाकी 3 को मैं हटा सकता हूँ। ठीक है। Organizations pay only for what they use. Organizations don't have complete control over resources and security. Okay. एक मिनट। Okay. Okay. So ये था पब्लिक क्लाउड। देन comes the private cloud. प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रिसोर्स एंड सिक्योरिटी। ये काफी अच्छा सिक्योरिटी फीचर है, बट सिर्फ यही एक ऐसा सिक्योरिटी, एक ऐसा की पॉइंट, एक अच्छा फीचर है जो प्राइवेट क्लाउड को थोड़ा अच्छा बनाता है। ठीक है, वरना बाकी सारे इसके ड्रॉबैक्स ही हैं एक तरह से। डेटाबेस इज नॉट कलेक्टेड विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेटा, ये भी एक की फीचर ही है, एंड सिक्योरिटी प्रेमिसेस में आता है इसके। वेल, द हार्डवेयर मस्ट बी परचेज फॉर स्टार्टअप एंड मेंटेनेंस, जो कि इसकी अपफ्रंट कॉस्ट काफी ज्यादा होती है प्राइवेट क्लाउड में, बट ट्रेडिशनली स्टोर करने के ब्याह पे काफी कम है। और प्राइवेट क्लाउड, यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि लोग प्राइवेट क्लाउड ही यूज क्यों करते हैं फिर, लाइक पब्लिक क्लाउड सीधा क्यों यूज नहीं कर लेते, या फिर ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर यूज क्यों नहीं कर लेते, राइट? तो इसका आंसर ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसने अपना प्लांट सेटअप किए दिल्ली में, मुंबई में एंड बैंगलोर में। ठीक है। अब अगर वो अपना ट्रेडिशनल डेटा सेंटर ऐसे बनाने जाएंगे, तो तीनों जगह पे अलग अलग बनाना पड़ेगा, और तीनों जगह पे डिप्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे मिला के। सो इंस्टेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिल्ली में ही एक डेटा सेंटर बना दिया और उसको क्लाउड पे होस्ट कर लिया। ठीक है। अब उन्होंने ऐसा करा तो क्या हुआ, इससे जो दिल्ली है, दिल्ली वाले एक्सेस कर सकते हैं, मुंबई वाले भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड जो बैंगलोर वाले वो भी एक्सेस कर सकते हैं सेम डेटा सेंटर को। और इसमें किसी टाइप का इसमें सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं हुए। ओके, तो ये था प्राइवेट क्लाउड के बारे में थोड़ा। देन एट लास्ट इज आवर हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड प्रोवाइड्स द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एज आई टोल्ड कि इसका मोस्टली यूज बैकअप के लिए होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिटरमाइन वेयर टू रन देयर एप्लीकेशंस। Organizations determine where to run their applications. Organizations control security compliance और legal requirement. Yes. तो ये था हमारा क्लाउड मॉडल्स, और कैसे अलग अलग डिप्लॉयमेंट क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करती है। ओके, so let's move to next part. Okay, describe consumption based model. So consumption based model में हम ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्राइसिंग होती है क्लाउड की, वो कैसे डिटरमाइन होती है। ठीक है, कैसे अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग प्राइसिंग होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी कंपनी में या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर 2 टाइप के एक्सपेंडिचर्स आते हैं। पहला इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। और कैपेक्स वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक बारी में कर देते हैं, लाइक इट इज टिपिकली अ वन टाइम अपफ्रंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसने अपनी एक बिल्डिंग परचेज कर ली, या फिर उसने एक डेटा सेंटर बना दिया, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर बना दिया, या फिर उसने अपने खुद की एक गाड़ी खरीद ली कंपनी के नेम से। तो दिस ऑल आर काउंट इन कैपेक्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स बोलते हैं जिसको, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रेंटिंग अ कार, रेंटिंग लीजिंग अ कंपनी बिल्डिंग, या फिर क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस करना। तो यू कैन सी, हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि जो क्लाउड सर्विसेज होती है वो ओपेक्स का पार्ट होती है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का। मीन्स यू हैव टू पे फॉर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। नहीं, हम अभी आगे देख भी रहे होंगे कि कैसे ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल यूज नहीं करती है, ये एक दूसरा प्राइसिंग मॉडल यूज करती है, जिसको हम बोलते हैं पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। ठीक है। देन यहाँ पे आते हैं कुछ चीजें कि कंजम्पशन बेस्ड मॉडल क्या चीज। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉल्स अंडर ओपेक्स बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेट्स ऑन अ कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। You don't pay for the physical infrastructure, the electricity, the security, or anything else associated with maintaining a data center. So yes,
कोई भी चीज़ ऐसी जो डेटा सेंटर को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रही है उसके लिए हम पे नहीं करते हैं, हमें सिर्फ रिसोर्सेज के लिए पे करना होता है इस पे। और इसमें एक और की फीचर ये है, लेट सपोज हमारे पास 5 रिसोर्सेज हैं और उन 5 रिसोर्सेज में से हम सिर्फ 3 यूज़ कर रहे हैं इस मंथ, ठीक है? और बाकी 2 हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बाकी 2 के लिए हमें पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा की पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और ये काफ़ी अच्छा एक रीज़न भी है कि क्यों काफ़ी सारी कंपनीज ट्रेडिशनल वे से क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्विच कर रही हैं। So let's move to the next slide. Okay. Describe the consumption-based model. This consumption-based model has many benefits, including no upfront cost, no need to purchase and manage costly infrastructure that user might not use to its fullest potential, and the ability to pay more resources when they are needed. Yes, इसमें scalability काफ़ी ज़्यादा है. Like आप on the go जो resources है, जो specifications है, वो बढ़ा सकते हैं अपने devices की, जो cloud storage लिया है आपने, उसका volume आप increase कर सकते हैं on the go by just paying, ठीक है? The ability to stop paying for resources that are no longer needed, and flexibility of resources, scalability of resources. Yes, हम इसमें अभी देख भी रहे होंगे, जस्ट कुछ स्लाइड्स के बाद ही हम ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे होंगे कि कैसे हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, कैसे हम अपनी एक वेबसाइट भी होस्ट कर रहे होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके, और कौन कौन सी सर्विसेज सच में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो देता है, ठीक है? ओके, सो आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड है। So compare cloud pricing models. So cloud computing is the delivery of computing services over the internet by using a pay-as-you-go pricing model. Yes, यहाँ पे हमने एक नया टर्म सीखा, pay-as-you-go pricing model. So ये काफी हद तक सिमिलर है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से। ये काफी हद तक सिमिलर है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से, बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, और उसमें हमारे पास थोड़े से वो कम होते हैं, लाइक ऑप्शंस कम होते हैं। बट पे एज यू गो में हम खुद से ऑप्शंस बना सकते हैं, ठीक है? और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक हम रिसोर्सेज चूज कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और इसके अलावा हम ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन से रिसोर्स हमें कितने पावरफुल चाहिए। ओके, सो यू टिपिकली पे ओनली फॉर द क्लाउड सर्विसेज यू यूज। और क्लाउड प्राइसिंग मॉडल का बेनिफिट्स क्या है? वेल, बेनिफिट्स ये है कि ये हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होने वाली है। ओके, इट हेल्प्स टू रन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर एफिशिएंटली, और जब हमें बिजनेस स्केल अप करना होता है और इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, बिकॉज सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, जितने भी प्राइसेस हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर द क्लाउड प्राइसिंग मॉडल एंड फॉर दिस सेशन। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे इसका, बट उससे पहले कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? अगर कोई क्वेरी है, यू कैन पुट इन द चैट। और मेरे पास थी भाई, एक बात बता अमन, जैसे जो क्वांटम कंप्यूटिंग है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे? वेल, सबसे पहली चीज़ की जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो काफ़ी अभी डेवलपिंग फेज में है। काफ़ी कम कंपनीज है जो अचीव कर पाई है क्वांटम कंप्यूटिंग, और क्वांटम कंप्यूटिंग में अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्केलेबिलिटी इश्यूज है, ठीक है? तो अभी एज सच उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं है इस पे। अभी नहीं, जैसे कह नहीं रहे थे कि ये शायद इफेक्ट कर सकता है इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के फ्यूचर को काफी हाँ, ज्यादा, डेफिनेटली कर सकता है, परफॉर्मेंस डेफिनेटली और कर सकता है। सिक्योरिटी में। यस, डेफिनेटली कर सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस बात को। बट वो सेम बात तो एआई एंड एमएल में भी इम्प्लीमेंट होती है, राइट? कि वो इम्पैक्ट करेगा, बट अभी थोड़ा सा डिस्टेंट है वो। अच्छा अमन, मेरे पास भी एक डाउट था वैसे। Yes. AWS में जैसे कि लैम्डा फंक्शंस होता है ना, जो तुम सर्वरलेस चला सकते हो, अजोर में उसका ऑल्टरनेटिव होता है कोई? एंड एक और चीज, तू बता सकता है वर्सेल होता किस लिए है? वेल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम फर्दर जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये सब वो टॉपिक्स हैं जो हमें डीप में पढ़ने हैं अभी। तो अभी जब मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तो उसमें भी मैं कुछ चीज़ें ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो नहीं, तो जो इसने बताया ये एक्सटेंशन नहीं एक सर्वरलेस क्लाउड कंप्यूटिंग का? सॉरी, क्या? जैसे जो शरण ने पूछा, तो इसका ये एक्सटेंशन नहीं है सर्वरलेस जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, वैसी कुछ हो गई? हाँ हाँ,
बट लाइक सर्वरलेस नहीं होता। आई मीन सर्वर तो ऑफकोर्स इन्वॉल्व होता है इसमें, बट जो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है उनके सर्वर्स होते हैं ये, और मेंटेनेंस भी वही करते हैं इसमें। ओके, सो अब्दुल रहमान इज आस्किंग विच क्लाउड सर्विस इज बेस्ट, जीसीपी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और एडब्ल्यूएस। सो एज ऑफ नाउ अब्दुल, जो एडब्ल्यूएस है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, वो बेस्ट बोलते हैं, कॉज मार्केट में जो एक्विजिशन है, जो कंट्रोल है, वो एडब्ल्यूएस का सबसे ज़्यादा है इस वक्त पे। द सेकेंड इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड द थर्ड इज जीसीपी। जीसीपी एक्सपेंड्स टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे है ठीक है। तो इसके अलावा जो एडब्ल्यूएस था, एडब्ल्यूएस ही वो पहला क्लाउड प्रोवाइडर था जो सबसे पहले आया था मार्केट में। ठीक है, ये आया था आई थिंक 2006 में, जब जेफ बेजोस ने लॉन्च किया था इसको। और इसके ऊपर काफ़ी अच्छा एक बिजनेस केस स्टडी भी है कि कैसे जेफ बेजोस ने इस पे पैसे कमाए थे काफ़ी सारे, और उसने लाइक प्रॉफिट वगैरह के बारे में कुछ डिटेल शेयर नहीं की थी। यू कैन चेक दैट। ठीक है, Azure and AWS have a broader range of services, but okay, okay. So GCP offers more. Okay, okay, ठीक। So let's move to the practical demonstration. छोटा सा practical demonstration है, उसके बाद हम वर्क्स वगैरह पे भी आएंगे। So Prithvi, is my screen visible? Hello. Yes, your screen is visible. Okay. Just give me a sec, guys. Okay. Okay, not visible. Okay, is it visible now? Okay. Yes, sir. ओके, सो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू गूगल। तो गूगल पे आया एंड यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आई विल टाइप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ओके, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर टाइप करा एंड यहाँ पे मेरे पास पहला ही लिंक आ गया इसका, एंड इस पे क्लिक करूँगा मैं, एंड ये है मेरा होम पेज। ठीक है, नॉट होम पेज बट जो लैंडिंग पेज है इस वेबसाइट का, इस पे आ गया। इस पे तुम जो है एज्योर फ्री में ट्राई कर सकते हो, स्टूडेंट्स अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट यू विल नीड अ क्रेडिट कार्ड। ओके, लाइक परचेजिंग के लिए नहीं, बट ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगता है। तो अगर अगर ये फ्री अकाउंट तुम लेना चाह रहे हो तो यू कैन एक्सेस इट, बट मेरे पास है भी तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। आई विल क्लिक ऑन साइन इन। So is my screen visible? हेलो। Yes. ओके, तो ये है डैशबोर्ड, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का डैशबोर्ड कि लैंडिंग पे कैसा दिखता है। ठीक है, डैशबोर्ड कैसा दिखता है, और ये सारी सर्विसेज हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी यूज़ करा है, बट कंपैरेटिवली जीसीपी के ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन यूआई है। ठीक है, जीसीपी भी अच्छा है बट इतना ज़्यादा वैसा नहीं लगता, वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक टर्मिनल ऑप्शन भी है, तो हम इसमें टर्मिनल के साथ भी काम कर सकते हैं, और ये पावर शेल एंड बैश स्क्रिप्टिंग दोनों देती है हमें। जिन लोगों को नहीं पता, पावर शेल सीएमडी कमांड लाइन होता है जो विंडोज़ में होता है मेनली, और बैश मेनली लिनक्स में होता है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करके कमांड्स दे सकते हैं, कमांड्स रन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा मेरे पास सर्विसेज देख लेते हैं क्या क्या है। वर्चुअल मशीन, स्टैटिक वेब एप्स हम वेबसाइट होस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट होस्ट करने के लिए करते हैं। इसको हम अभी यूज़ करके भी दिखाएंगे। इसके अलावा है सीक्वल डेटाबेसेस, पावर प्लेटफॉर्म। अब पावर प्लेटफॉर्म एक थोड़ा सा नया चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग के इसमें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। इसका यूज़ हम एआई एंड मशीन लर्निंग के लिए करते हैं, और जो फर्दर नए न्यू सेशंस आ रहे होंगे, अपकमिंग सेशंस, उसमें हम पावर प्लेटफॉर्म का यूज़ करके एआई वगैरह भी बना रहे होंगे। ठीक है, हम नए नए मॉडल जनरेट कर रहे होंगे और एआई प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे, ज़्यादा खतरनाक वाले नहीं, मतलब
सिंपल से प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, फेस रिकॉग्निशन वाले, या फिर OCR यूज कर रहे होंगे हम किसी में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो प्लीज स्टे ट्यून। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारी सर्विसेज है। तो लेट्स सी, स्टैटिक वेब एप्स देखते हैं ये क्या क्या सर्विस है ये। तो मैंने यहाँ पे आ गया इसके अंदर, नाउ विल क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, सो ये आ गया मेरा दूसरा पेज, और इसके अंदर मेरे पास ये एक ऑप्शन मांग रहा है नेम का। तो यहाँ पे मैं एक नेम डाल दूंगा, जो भी मेरे को स्टैटिक वेब ऐप का नेम रखना है। ठीक है, देन मेरे पास क्या आएगा, देन मेरे पास एक प्लान टाइप है। मैं प्लान टाइप स्टैंडर्ड भी ले सकता हूँ, फ्री भी ले सकता हूँ। देन मेरे पास एक रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ये एनवायरनमेंट सेलेक्ट करता है उसी रीजन के हिसाब से, और जो भी आपका नियरेस्ट रीजन है उस हिसाब से स्टेबल चीज़ें देगा आपको। ठीक है, देन मेरे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिटेल्स, जिसमें मेरे पास सोर्स है, मैंने गिटहब डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और भी ऑप्शंस है, बट मैंने यहाँ गिटहब डाल दिया। तो बेसिकली हम यहाँ पे करने के वाले हैं, मैंने लेट सपोज मैंने गिटहब पे अपनी कुछ प्रोजेक्ट्स अपलोड कर रखे हैं, कोड अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गिटहब से वो कोड उठाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट एजोर में डालूंगा, एंड यहाँ से उस सर्विस को होस्ट कर लूँगा। ठीक है, कैसे किया है वो चीज़ वो देखते हैं। सोर्स है मेरे पास, मैंने गिटहब पे क्लिक कर रखा है, मैंने अकाउंट डाल रखा है अपना, अमन 003 सिंह। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेरे को अपना ही नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लेट सपोज अमन 003 सिंह मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली मेरी जितनी भी रिपॉजिटरी है मेरे गिटहब अकाउंट पे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आएगा। और अब मैं चूज कर सकता हूँ अपनी गिटहब रिपॉजिटरी कोई सी भी जो मुझे होस्ट करनी है। ठीक है, और सपोज मैंने कोई गिटहब रिपॉजिटरी यहाँ पे चूज भी कर ली, देन मेरे को ये अपने आप मेन ब्रांच पे दे देगा, एंड मेरे को सिर्फ एक चीज़ करनी है इसके बाद, रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट पे करते के साथ ये मेरे को होस्ट करके दे देगा, लिंक वगैरह दे देगा। मैंने ऑलरेडी एक होस्ट करके रखा है, तो उसी पे चलते हैं पहले। ठीक है, मैं अभी होस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैंने ऑलरेडी होस्ट कर रखा है MLSA टास्क। ठीक है, तो जैसे ही मैं रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करूंगा, मेरा ये पेज ओपन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और इसमें यू कैन सी मेरे पास एक URL का ऑप्शन आया हुआ है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, दिस इज माई ऑफिशियल URL वैसे, जो इस वेबसाइट के लिए है। ठीक है, तो यू कैन सी इस जगह पे ये होस्ट हुआ पड़ा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में जाके देखूँ मैं यहाँ, तो ये प्रोजेक्ट जो है यू कैन सी ये सब गिटहब पे अपलोडेड है, गिटहब पे होस्ट हो रहा है। ठीक है, बट जो मेरी मेन वेबसाइट है वो एज्योर पे होस्टेड है। तो इसके अलावा एक और सर्विस देखते हैं, छोटा सा देखेंगे थोड़ा सा, कि वर्चुअल मशीन्स कितनी पावरफुल प्रोवाइड करता है। और ठीक है, और हम किस किस टाइप की वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर पाएंगे अगर हम क्लाउड सर्विस का यूज़ करते हैं। तो लेट्स चेक वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा, एंड मैं आऊँगा क्रिएट पे, एंड एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर दूंगा मैं। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ फील्ड्स मांगेगा मेरे से। सबसे पहला वर्चुअल मशीन का नेम मांगेगा, देन मेरे पास रीजन मांगेगा, अवेलेबिलिटी मांगेगा, जोन्स मांगेगा, सिक्योरिटी टाइप भी मांगेगा, यू कैन डिटरमाइन द सिक्योरिटी। इसमें काफ़ी सारे हैं, स्टैंडर्ड भी है। और फिर मेरे पास यहाँ पे OS का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, और OS पे मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ऐप उबंटू, और सुजे है, एक रेड हैट है, ओरेकल है, डेबियन है, विंडोज सर्वर है, विंडोज 10 प्रो है, एंड विंडोज 11 प्रो है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे मेरे पास, बट ये सारे ऑप्शंस वो हैं जो जनरली यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, देन मैं वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर भी यूज़ देख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 64 बिट्स यूज़ कर रखा है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राइसिंग मॉडल इसका। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे को 1 GB ऑफ मेमोरी के लिए 7567.58 पर मंथ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि इसमें मोस्ट पावरफुल मशीन क्या चीज़ है, मोस्ट पावरफुल की स्पेसिफिकेशंस क्या है, लेट्स सी क्या चीज़ है। ओके, सी ऑल साइजेस। और एक मिनट गाइस,
ओके, सो यू कैन सी कि मेरे पास रैम कितने साइजेस की है, 8 गीगाबिट, 4, 1, 8, 16, 14, 32, बट ये उतनी पावरफुल नहीं है, ठीक है। लेट्स सी मेरे पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है। और तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ 16 है, 32 गीगाबिट्स ऑफ रैम यूज़ कर सकता हूँ मैं, 64, 128, 256 ऑफ गीगाबिट्स ऑफ रैम, 384 और भी होगा, और 512, 672 गीगाबिट्स ऑफ रैम। सो इतनी पावरफुल मशीन्स हम बना सकते हैं यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और ये जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पे, हम इन सबको आने वाले सेशंस में स्पेसिफिकली एक एक फील्ड को हम और इन डेप्थ देख रहे होंगे और उस पर प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे। So this was it for today's session. So Prithvi, हेलो। हेलो। तो एक अटेंडेंस लिंक अभी ड्रॉप होगी चैट पे, वो फिल कर देना फॉर योर ठीक है। सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद हम आते हैं पर्क्स पे। अटेंडेंस का लिंक चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दिया, उसको फिल कर दो। फिल कर दो गाइस जल्दी, इसके बाद पर्क्स पे आते हैं। क्योंकि एक और चीज़ बता दो, जो मैंने पीपीटी है इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, लाइक ग्रुप पे ड्रॉप करूँ या नहीं करूँ, जो एमएलएसए ग्रुप है, एमएलएसए टिप्स एक्चुअली। कर दे यार, इट विल बी हेल्पफुल। फॉर्म सबमिटेड, कैन आई। यार दूसरा मैं शायद ग्रुप पे हूँ नहीं, एच वाले एमएलएसए वाले में। ज्वाइन कर लो ब्रो, कॉज उसका लिंक मैंने भेजा था ऑलरेडी कॉलेज मीट से। अमन, आप अपने भी ये सोशल मीडिया लिंक्स जो है वो शेयर कर दें चैट में। ओके, मैं कर देता हूँ। अच्छी बात है भाई, एटलीस्ट ये जिंदगी की तरह हक तो नहीं रहा भाई। मैं ओके तो गाइस ये है लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी, यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। एंड हियर इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, सबने फिल कर दिया। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास? अभी 14 रिस्पॉन्सेज आए हैं। 14 आए हैं, वेट कर ले रहे हैं थोड़ा।
हेलो पृथ्वी। हाँ छोड़ कुछ नहीं। चल आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो गाइस अब कितने रिस्पॉन्सेज कितने आए हुए थे अटेंडेंस लिस्ट पे? 15। हो गए। ओके, सो गाइस अब बारी अब पर्क्स की, एंड आई थिंक कोई एक जीतेगा जो उसको मिलेगा, उसको खुद चूज करने का मौका मिलेगा उसको कौन सा पर्क चाहिए। दो पर्क्स दे सकते हैं अपन। द फर्स्ट इज लिंक्डइन प्रीमियम, ठीक है, एंड द सेकंड इज एक्सबॉक्स एलीट गेम पास, ठीक है। तो एक क्विज का लिंक अभी ड्रॉप होगा एंड वो फिल आउट कर दो, लाइक सिर्फ 5 क्वेश्चन है उसमें, एंड जो भी यहाँ पे अभी पढ़ाया गया है उसमें से ये सब कुछ, ठीक है, एंड काफ़ी इजी सा है। तो उसके बेसिस पे जो टॉप परफॉर्मर होगा उसको मिलेगा वर्क। ड्रॉप कर दे ब्रो। कर दिया, कुछ का ड्रिंक ड्रॉप कर दिया। ओके, कुछ लोगों ने वापस ज्वाइन करा है क्या? रात तक या कल तक क्विज का विनर डिक्लेयर कर देंगे। हाँ, जो रिस्पॉन्सेज होंगे, जो रिस्पॉन्सेज के साथ हम वो डिक्लेयर कर देंगे कि कौन जीता है, ठीक है। फिल आउट कर दो। और वन मोर थिंग गाइस, जो सर्टिफिकेट्स होंगे और जो रिवॉर्ड्स होंगे वो ईमेल हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है, कॉज जितने भी फील्ड्स हमने भरवाए हैं उसमें ईमेल एंड नेम दोनों है। और तो भर देना, तुमने भर दिया है तो ठीक है। और जो बात है वो ये है कि हो सकता है एक हफ्ता लग जाए, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें डिलीवर हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा तुम्हारा सर्टिफिकेट और जो रिवॉर्ड है, ठीक है। तो डोंट पैनिक अगर 1-2 दिन में नहीं आता है, ओके। ये पहला सेशन है इसलिए ऑनलाइन मेल कर रहे हैं। आने वाले सेशंस में थोड़ा बजट बढ़ेगा तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, कितने रिस्पॉन्सेस आए, एनी आइडिया? क्विज पे तो अभी एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, भर रहे होंगे सब, टाइम लगा रहे होंगे अभी थोड़ा। अरे मुझे वो शेयर कर देना, व्हाट इज आर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक। ब्रदर एक क्विज का क्वेश्चन है, हाउ कैन अरे वी यार, आंसर दिस नाउ। अरे अरे अरे। हाँ इसके मल्टीपल क्वेश्चन है, एक एक है जिसके मल्टीपल आंसर है। यस, यू राइट। एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है इसमें। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यस, मल्टीपल ऑप्शंस ही क्लिक करने पड़ेंगे। पृथ्वी, तूने फॉर्म कैसा बनाया था? मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना मल्टीपल सेलेक्ट। लेट मी चेक, लेट मी चेक। नहीं अभी कर चेक सकते कर। multiple। ओके, लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? ओके, तो यस, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। और इस क्वेश्चन पे कौन सा, यार तुम कोई सा भी करेक्ट आंसर भर दो।
कोई सा भी भर दो, उस बेसिस पे पॉइंट्स मिल जाएंगे तुम्हें। एक ही भर सकते हो ना, अगर तुम कोई सा भी एक सही आंसर भरते हो तो उसके स्पेसिफिक पॉइंट तुम्हें मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने सही वाला पॉइंट भर दिया है तो भी आंसर मिल जाएंगे। ओके, सबमिट कर दिया। ओके। सबमिटेड भाई। ओके गाइस, सो लेट्स एंड दिस मीटिंग। जितने भी रिस्पॉन्सेज है, जितने भी रिवॉर्ड्स होंगे और जो विनर होगा वो डिक्लेयर हम कर देंगे आज शाम तक या फिर कुछ घंटे में ही कर देंगे, ठीक है। जो हमारा MLSC ग्रुप है उस पे। यार एक चीज बता, जैसे अगर मल्टीपल विनर्स हुए तो? क्या? मल्टीपल विनर्स हुए तो उसमें जिसने पहले मल्टीपल सबमिट विनर करा है, हुए तो जिसने हाँ, पहले सबमिट करा है, जिसने पहले सबमिट करा है उसको मिलेगा। अरे अब्दुल रहमान, एक्चुअली वो दूसरा MLSC ग्रुप है। अब मैं जो नॉर्मल वाला ग्रुप है ना हमारा, उस पर भी बता दूंगा अगर यू आर द विनर, ठीक है। हाँ सही भाई, सही। ऑल्सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स एंड द मीट। और अपकमिंग सेशंस के लिए रेडी रहो सब कोई। और काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आएंगी, हम बाहर से भी हो सकता है स्पीकर्स लाएं। तो थैंक यू, नाइस सेशन। ओके, वेलकम। ओके, मीट एंड करते हैं फिर, ठीक है। ये क्विज का लिंक थोड़े टाइम तक और एक्टिव रहेगा, उसके बाद मैं रिस्पॉन्सेज बंद कर दूंगा। यस, फिल कर देना सब प्लीज़।